and welcome to Assistive with Tejendra sir. Today we will learn Standard 10 chapter number 15 part 2. इस पार्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस. बहुत सारी डेफिनेशन है, बस याद करते जाना है और ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी वर्ड. सो रिमेंबर एंड लेट्स स्टार्ट. तो चलिए सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग समझते हैं, दैट इज अ इकोनॉमिकल एक्टिविटी. So what is the meaning of economical activity? It is the meaning of that if any activity that is intends to earning money, that is economical activity. ये एक definition है. Otherwise that means economic activity means that is a during earning or spending money. दो चीजें होती है, या तो हम लोग earn करते हैं या तो spend करते हैं. Earning or spending money for the exchanging of commodities and services, that is known as a economical activity. So who done these things? Everyone, majority of the society, we are all doing economical activity. किस तरह से economical activity करने वाले? That is a farmer, teacher, advocate, doctor, engineer, all that person are doing economical activities. Now the second definition, that name is a non-economical activity. So, in which activity there are no aim to earning income or reciprocate indirectly, that means कोई benefit नहीं लेना है indirectly, that activity considered as a non-economical activity. So, which are the example? इसके कई सारे example है. Your nurture, मतलब आपके लिए जो आपके मम्मी पापा कर रहे, that all things are considered as a non-economical activity. And if you give some beggar something, that is also known as a non-economical activity. तो कई सारे टाइप की नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी की जाती है. जनरली नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी इमोशन से की जाती है. जो हम लोग इमोशन से काम करते हैं, दैट ऑल दिस थिंग्स, पैसों के लिए जो काम ना हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. अनदर टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी डेफिनेशन से पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बाद में समझते रहेंगे कि किस तरह से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जब भी, तो वो कौन से सेक्टर के अंदर इंक्लूड होता है. सो ध्यान से समझ लीजिए, दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी. टर्शरी मतलब दैट मींस सर्विस सेक्टर. सो फर्स्ट ऑफ दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. सो जनरली विच एक्टिविटी एसोसिएट विद दैट एग्रीकल्चर, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी एक्टिविटी. इंडिया के जैसे नेशन के अंदर तो यही डेफिनेशन सबसे सही रहेगी. बट देयर आर सो मेनी थिंग्स आर कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी एक्टिविटी. जो इफ वी कलेक्ट सम नेचुरल थिंग्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी. जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, दैट इज अ एग्रीकल्चर, देन आफ्टर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्शन और माइनिंग का जो वर्क होता है. दैट मीन्स यहाँ पर पूरा माइन को माइन में से जो हम लोगों को मिनरल्स मिलते हैं, that is just a collecting of minerals, just a collecting of forest product, that all things are considered as a primary activity. But secondary activity, that is called industrial activity also. So definition is not difficult and it is not difficult to understand. When we are doing so many process on primary sector production, that is known as a secondary sector or industry. For an example, animal husbandry is a primary sector. तो if we are doing animal husbandry कर रहे हैं जो लोग, वो एनिमल को रखते हैं, नर्चर करते हैं उसको, और दूसरी तरफ से they collect that milk from the dairy production is a primary activity. So उस मिल्क में से चीज या बटर या फिर कुछ भी चीजें बनती है, that is called also secondary activity. Wood cut करना, that is a collecting product from forest. और उसके बाद उसका फर्नीचर बनाना, that is considered as a industry. Same to same, obtaining some mineral, that is a primary activity. But when we melt that minerals and doing some rod or anything else, that is called industry. So that means small, large scale, जो भी टाइप की इंडस्ट्री प्रोडक्शन होता है, that is called secondary activity. And third type of activity, that is a service sector. So remember friend, which type of activity considered as a service sector? Service sector, it is associated with primary and secondary sector, and individually
दैट इज नो प्रोडक्शन वी कैन फाउंड इन सर्विस सेक्टर. अच्छा, प्रोडक्शन कुछ नहीं होता ऐसा लोगों को लगता है, बिकॉज यू कैन नॉट सी विच आर द प्रोडक्शन. Banking, insurance, transportation, communication, this all things are considered as a service sector. For an best example, electricity, it is a service sector. So क्यों ये वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं. सो इलेक्ट्रिसिटी जो गिरती है वो हम लोग बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्राइमरी सेक्टर का नहीं आएगा, वो टर्शरी सेक्टर में आएगा. आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक वायर के अंदर होती है, बराबर. बट जब तक वो वायर में से वो आप फैन के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर और व्हाटएवर एयर कंडीशन के अंदर जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती तब तक वो आपके इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते. तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हम लोग अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट जो है वो एयर कंडीशन का है उसको पकड़ कर बैठ जाए और स्विच ऑन कर दे तो हमें क्या ऐसी जैसी मस्त वाला कूलिंग मिलेगा? नो, ये कभी पॉसिबल नहीं. सो दैट इज व्हाई so service sector is the most important. Transportation, communication, all the things are considered as a service sector. Now another definition का sector फिर से start हो रहा है, that is a factors of production. There are the 4 factors of production. That name is a land, labor, capital and entrepreneurship. ये 4 चीजों से प्रोडक्शन किया जाता है. कोई भी प्रोडक्शन हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस सेक्टर, वो इकोनॉमिक्स के एक पार्ट बनते हैं. और हम लोग समझ रहे हैं अभी दैट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज द फर्स्ट इज अ लैंड. इन जनरल टर्म लैंड मीन्स अपर मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज अ लैंड. वो अर्थ के ऊपर देख सकते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स विच नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन, which natural resources used in production that known as a land. That means जो land होती है वो भी आएगी और जो अलग अलग टाइप के मिनरल्स यूज करते हैं that is also considered as a land. साथ में इसको देखा जाए तो रिवर, माउंटेन, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, लैंड, दिस ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ लैंड. सो लैंड की डेफिनेशन यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही ब्रॉड दी गई है. उसके बाद सेकेंड नंबर आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल. So what is the meaning of capital? That means which man-made things used in production, that is known as a capital. जो भी चीजें humans ने बनाई जिसके अंदर हम लोग मान रहे money, tools, building, this all things are machinery, this all things are considered as a capital in a production. Third number, it is about labor. To done some activity that intends of monetary gain and person doing these things as a physical or mental work, that is known as a labor. But as a definition देखा जाए स्क्रीन के अंदर, you can see this is the thing that is about mental or physical work done the aim to obtain monetary gain, that is known as a labor. Only labor, 4 प्रोडक्शन के फैक्टर्स जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, that labor is a living object of production. So teacher, doctor, farmer, then industry के अंदर काम करने वाला worker, this all things are considered as a labor if they are not owner of that institute. ये भी याद रखना है इसके अंदर. Now the fourth one, entrepreneurship. A person who combine, that is a 3 factor of production, that means land, labor and capital. The person who combine the 3 factors of production with the efficiency, that is known as the entrepreneur, and which activity done by entrepreneur, that is known as a entrepreneurship. Okay, तो ये था डेफिनेशन का भंडार. ओ बम फट गया भैया, दिमाग का बम फट गया. बट अब हम लोग देखेंगे कुछ इजी वाले टॉपिक जिससे हम लोग समझेंगे आराम से और थोड़ी सी बातचीत कर सके. सो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये टॉपिक का नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो जनरली हमारी जो डिमांड होती है वो अनलिमिटेड होती है. तो फर्स्ट इज दैट इज अ अनलिमिटेड वांट्स. जैसे क्या होता है कि एक हमारी डेफिनेशन या फिर एक हमारी डिमांड खत्म हुई, उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी, चौथी चालू ही रहती है. बेस्ट एग्जांपल, जब आप लोग 3rd से लेकर 5th तक होंगे
और बर्थडे आएगी तो मम्मी से मांगोगी तो क्या मांगोगे, मम्मी मम्मी साइकिल चाहिए। फिर फिफ्थ के बाद धीरे 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 हम लोग 8 9 10 में आ गए, मेरे को एक्टिवा चाहिए। फिर उसके बाद तो क्या आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं होगा ये। सो डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहती है, बाइक से सुपर बाइक, छोटे घर से बड़ा घर, से बंगलो से विला तक हम लोग चलते रहते हैं। दैट इज अ अनलिमिटेड वांट, दैट इज द फर्स्ट थिंग्स, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑर्डर ऑफ नेसेसिटी। So importance order of necessity, the person to person importance order of necessity is different. मतलब which things is important for me, that means so maybe it is not a zero importance for you also. जैसे कि अपने क्लासरूम के अंदर किया ही होगा कि जो स्कूल के अंदर चौक होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए चौक क्या काम के होते हैं, किसी को मारने के लिए या फिर किसी को बुलाने के लिए या फिर वो किसी के सर के ऊपर पाउडर बना के डालने के लिए, तो यही काम करते थे। बट फॉर टीचर वो एक आर्टिस्ट के जैसे काम कर सकते, बोर्ड पर लिखते हैं, उससे कोई ग्राफ बनाते हैं, कोई मैथ्स का सम करता है और एसएसटी के अंदर मैप किया जा सकता है, सो मेनी थिंग्स। सो दैट इज अ नेसेसिटी ऑर्डर। टीचर के लिए ये अलग से हो सकता है, और कोई बीमार इंसान हो उसके लिए वो जो दवाइयां होती है दैट इज इम्पोर्टेंट नेसेसरी, वो हाईएस्ट हो सकता है। जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, तो उसकी मेडिसिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर हम लोग दूसरे फैक्टर के हिसाब से देखें कि कैंसर की 10,000 रुपए की दवाई किसी ऐसे इंसान को रोड पर मिल जाए कि भाई जिसको कैंसर भी नहीं है और उसके रिलेटिव में भी किसी को नहीं है, तो वो कैंसर की दवाई हमारे लिए क्या होगी, यूजलेस। हाँ, कोई ऐसे भी इंसान होंगे जो उसका अलग गलत इस्तेमाल करे, दैट इज अनदर थिंग। सो फर्स्ट इज अनलिमिटेड वांट, second is the importance in terms of order, person to person is a different things, and that limited resources। बस यहां से स्टार्ट होता है हमारे जिंदगी का खतरनाक अध्याय। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या होता है, there are not so much resources available from us, that means money। so money हमेशा कैसे होते हैं, कम, और लिमिटेड होती है दमदार, बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पर हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को उस लिमिटेड रिसोर्सेस में से, अनलिमिटेड वांट्स में से मैक्सिमम जो हमारी लिमिटेड जो डिमांड होती है उसको हम लोग फुलफिल करने का ट्राई करते रहेंगे, तो वो होता है लिमिटेड रिसोर्सेस। बट रिसोर्सेस का एक जोरदार यूज होता है और एक फैक्टर जोरदार होता है जो हमें हिला देता है, पोपटलाल के जैसे नहीं। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, एवरी रिसोर्सेस हैव alternative uses. For an example, if we have that land, so उसके कितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं। We can do agriculture on that land, we can make house or business area, whatever जो हम लोग चाहे वो लैंड के ऊपर कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूज, जैसे अपने एग्जाम के अंदर आता है ना MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यू कैन नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग। मतलब ABCD में से कोई एक तो सही है सर, हाँ बेटा कोई एक तो सही है, बट आप तो सिलेक्ट करो। बस यहीं पर होता है कि अनलिमिटेड वांट्स में से ऑल्टरनेटिव यूज जो आते हैं रिसोर्सेज के, जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोगों ने जो लैंड का एग्जांपल दिया उसको कंटिन्यू करते हुए किसी ने मान लिया कि चलो हम लोगों को एग्रीकल्चर करना है, बट विच टाइप ऑफ क्रॉप वी विल ग्रो। सो उसके अंदर हो सकता है पैडी भी हो सकता है, ज्यूट भी हो सकता है, व्हाटएवर जो आप पल्सेस के अंदर चाहो, या फिर मेज, मिलेट, कोई भी चीज को ग्रोथ करना चाहो, तो चलो एक बार डिसाइड कर लिया कि वी विल ग्रो पैडी, मतलब कि डांगर या फिर राइस को ग्रो करेंगे। बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट यूज दैट एरिया फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अगर फार्म के अंदर प्रॉपरली हम लोगों ने पैडी ग्रो कर दी, एग्रीकल्चर के अंदर वो ग्रोथ होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो उसके अंदर उसको क्रिकेट ग्राउंड के जैसे यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल्टरनेटिव यूज। एक टाइम पर एक रिसोर्स को एक ही जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पर यूज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दिस इज द थिंग्स। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज के दिन के अंदर बहुत सारा काम हो चुका है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमने समझ लिया, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी ये भी समझ लिए। बट अगर कोई ये पूछे कि वाइफ बोले घर का काम करो और करना पड़े, so which things are considered that is a non economical activity, बराबर। तो मेरी भी बहुत सारी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बाकी है, अब मैं वही करने जाऊंगा
So say bye bye everyone. SST with Tejendra sir. Remember, like, share and subscribe.